سر پہ سایہ ہے اور خاص کر کے غوث پاک کا سایہ ہے۔ ہم جو بھی بولتے ہیں میرے اندر کچھ کیا کر رہا ہے، بس ان کا فیضان ہے جو بول رہا ہے۔ بس آپ لوگ جو محبت پیش کیے ہیں یہ محبت رمضان بھر ہی نہیں رہنی چاہیے، رمضان کے بعد بھی جو علماء دین یہاں رہتے ہیں، عالم دین رہتے ہیں یا اس ادارے سے جو جڑے لوگ ہیں، سب سے آپ محبت کریں، خاص کر کے اس ادارے سے محبت کریں، اس مسجد اقصیٰ سے محبت کریں۔ میری جو بات ہے وہ سیدھے ہے کہ اے ایمان والوں، پورے طور سے عام بھاشا میں ہم تم سمجھا رہے ہیں، پورے طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک خیر پورے اپنے آپ میں مکمل ہے، دیکھیے آپ اس کو کتنے کا لائے ہو، وہ اپنے آپ میں پورا مکمل نظر آ رہا ہے، آج اس کا سب کچھ بڑھیا ہے، وہ اپنے آپ میں ادھورا نظر آ رہا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ حیرت کی بات ہے، جس کا سب کچھ بڑھیا ہے، جس کا رہبر اچھا ہے، جس کا طور طریقہ اچھا ہے، سب سے بڑھ کر یہ جان لیں جس نبی کا کلمہ پڑھتے وہ سب سے بے مثال ہے۔ تو پھر تو ہم لوگ کو بھی بے مثال ہونا چاہیے نا، ہمارا طور طریقہ، ہمارا جو چلنا، ہمارا پھرنا، ہماری بولی، سب کچھ الگ ہونا چاہیے اور پورے دور سے داخل ہو جائیے، نبی کے قول و فعل پر زندگی گزارنی ہے نا۔ اور پھر دیکھیے جب آپ یکتائی کا ثبوت دیجیے گا نا تو یقین یعنی آپ یہ یقین جانیے جیسے یہ ہاتھ ہے، آپ کو ہم بڑھائیں گے تو چاہیں گے تو آپ اس ہاتھ کو موڑ سکتے ہیں آسانی سے، بڑی آسان طریقہ ہے کہ اس کو آپ موڑ سکتے ہیں، مگر اسی کو ہم پورا جھوٹ بنا لیں، ہم انگلی باندھ لیں تو آپ کا مجال ہے کہ جو ہے آپ انگلی موڑ لیجئے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ ایک جھوٹ ہو کر کے اس ادارے کو ترقی دیں گے تو پھر آپ کی ترقی ہوتی رہے گی۔ بے شک بے شک بے شک۔ عبدالحنان صاحب نے ساری بات کہہ دی ہے، اس بھائی ہے، قابل عالم ہے، اچھے عالم ہے نا۔ حافظ صاحب قبلہ بھی جو آپ کو چھوٹے آپ بھی بہت اچھی بات کہا انہوں نے، بہت اچھی بات سنایا انہوں نے، آپ نے سنا بھی، اس سے ایک بات سنیں، بس ایک بات سن لیں، بس اتنی زور سے درود پڑھ دیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے۔ اس بات سے آپ سبق لیجیے گا صاحب اور یاد کیجیے گا ہمیں، اور دعا بھی لیجیے گا، یہ دعا کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ حاجی صاحب لوگ اس دعا جی ماشاءاللہ، ایک ارادی جو ہے، ارادی کہتے ہیں دیہاتی کو یا بدو بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بکریاں لے کر کے گیا جنگل چرانے۔ اب جنگل میں بکری چرا رہا ہے، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا، اب بھیڑیا جیسے ہی آیا بکری کو اٹھا لیا، آج جیسے ہی پکڑا ویسے ہی اس کے ہاتھ میں تھی لاٹھی، آسان لاٹھی یا لٹ ہے نا، لٹ ہاتھ میں تھی، جیسے ہی پکڑا ویسے ہی اس نے لٹ جو ہے اس کے منہ پہ مارا، جیسے ہی مارا وہ چھوڑ کے دور چلا گیا، چوٹ لگی، درد پہنچا، دور جا کے بیٹھ گیا۔ اور سنیے جیسے ہی دور پہنچا انسانی لب و لہجے میں کہتا ہے، یعنی جیسے انسان بولتا ہے ویسے اب وہ بول رہا ہے، کون؟ بھیڑیا۔ کہا کہ افسوس ہے تمہارے ہاتھ میں لاٹھی اتنے تم بھی بچ گیا، تم کو بھی ہم کھا جاتے اور تمہاری بکری کو بھی ہم پاٹ دیتے۔ تو اب یہ دل میں خیال آ رہا ہے کہ ارے کمال ہے، یہ ہماری بولی بول رہا، ہم جیسے بول رہا۔ تو ادھر سے جانور کہتا ہے، سوچتا کا ہم بول رہے ہیں تو تم کو سمجھ میں آ رہا ہے، ہر دن جو ہے مدنی سرکار مدینے میں بیٹھ کے سمجھا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مدینے میں بیٹھ کر کے آقا کریم سمجھا رہے ہیں کہ ایک اللہ کی پرستش کرو، راہ راست پر آ جاؤ، ایک خدا کی بندگی کرو، پھر کدھر تم بھٹک رہا۔ اب یہ کہ دل میں ایمان مچلا کہ کلمہ پڑھیے لیتے بڑھیا رہے گا، ہے نا۔ دیہاتی تک کلمہ تو پڑھ لینے میں بھلائی، سمجھ بات آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ ہاں دل سے سنیں، چہرہ اٹھا کے سنیے، چہرہ گرا کے۔ ہاں کہا کہ کلمہ ہم پڑھیے لیتے ہیں۔ اب جیسے ہی سوچ رہا کہ اتنا چھوڑ کے اگر گئے تو یہ کہیں کہ تمہیں کر کے غائب نہ کرنا، یہ بھیڑیا ہے نا، جانور ہے، اٹھا کے ساری بکری کو لے جائے گا۔ ایسے بڑھیا ہے کہ کھڑے رہتے ہیں، تو جانور کا ہے سوچتا کیا ہے، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا میں بھی پڑھتا ہوں، نبی کا کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور سن جب تک تو نہیں آئے گا تیری بکری کی حفاظت میں کروں گا۔ کمال ہے، دل سے سنو صاحب کیا کہا، کہ سوچتا کیا، دل میں کیا کہا
इंसान है ना जी, जा भी रहा है आप पलट पलट के देख भी रहा है कि क्या झूले गया, क्या है क्या गया। जय सही तेजी के साथ आया मस्जिद नबी में, कदमों पे गिरा, आके करीम ने कदमों से उठा के सीने से लगाया, कहा क्या बात है, कहा हुजूर जानवर से सबक मिला, कलमा पढ़ने आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मेरी बात सुनना है, कहा हुजूर कलमा पढ़ा दीजिए, सीने से लगाया, कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। अब जैसा ही कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में आ गए, जैसा ही दायरे इस्लाम में आ गया ना, अब दिल में ख्याल आया तो फौरन जाके हुजूर भेड़िया के हवाले छोड़ के आए। सुभान अल्लाह सुभान। कहा जाओ ना तुम्हारी बकरी को कुछ न करे। जानते हैं इंसान में है जी, ख्याल तो आ ही जाता कि माल है, सब पूंजी चला गया तब क्या होगा। जैसे आप लोग 1000 रुपया 1500 रुपया दे दिया तो कोई आदमी कानून कर जाए सब दे देगा तो तुम तुम्हारा कुछ कर लोग का जो ज़हन है वो पढ़ा देगा, जैसा ही पढ़ाता था आप लोग भी कहता हाँ सही ये कह रहा है, नहीं जी सही नहीं कर रहा, वो शैतान उसके अंदर घुस करके वो आपको समझा रहा, खल डालता। अगर कोई दे रहा है 2000 रुपया तो आप कोशिश करो अल्लाह ने करता किया तो आप 4000, फिर देखो आप क्या आप अगर नफसानी खाएगा तो मरेगा और दिल जिंदा होगा तो फिर अल्लाह का महबूब बंदा बन जाएगा। ये बात आप की है, इसको खत्म कर रहे हैं। अच्छा माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है ना। वो तेजी के साथ इंसान है ना दौड़ के निकला और लठ लिए हुआ है, मगर तेजी के साथ दौड़ते दौड़ते आया, आज जंगल में थोड़ा सा टकटकी लगा के देखे कि ले गया कैठू है कि नहीं, खा लिया सब। देखता है पहले एक भेड़िया था, उसके बाद कई भेड़िया आकर के सारी बकरियों की चरवाही कर रहा। अल्लाह जब सही ये माजरा देखा ना रोने लगा, चारों कतार रोने लगा। इसी बात को मेरा कहना ये है, कसम खुदा की आज भी आप सच्चे आशिक रसूल अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओ, ये जितने भेड़िए हैं तुम्हारी इबादत करेंगे। घबराने की क्या बात है साहब, हमसे बात के मानने वालों हो, खाजा अजमेरी के मानने वालों, सच्चे बन जाओ। मेरा दावा है ये जितने भेड़िए हैं, चाहे किसी जगह का भेड़िया हो, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा, हिफाजत के साथ साथ तुम्हें सैल्यूट करेगा। इसलिए आप इससे जुड़ जाइए, इससे करीब हो जाइए, यही मेरी बात है। और बातें तो बड़ी बहुत सारी है, अगर हम कहना शुरू कर देना तो फिर आप लोग रात भर बैठे रह जाएंगे। पर हाँ इतना है कि अब आप जाग गए हैं, अब महसूस हमको हो रहा है कि अब मिलाप सुन रहे हैं। इतनी देर से हमको लग रहा था कि आप लोग मिलाप को सुन रहे हैं। मुझे दिक्कत महसूस हो रही थी, कोई उठ के भागने की कोशिश कर रहा है, कोई जाने की कोशिश कर, अब लग रहा कि नहीं बिल्कुल आँख खुली हुई है, दिल जिंदा हो गया। आपके रसूल का फैजान मुकम्मल बस रहा है। हाँ जी आप दिल से सुनो, गौसे पाक का फैजान बस रहा था। हाँ जी क्योंकि कहा गया कि वो पीर चाहे अच्छा हो या ना हो, और उसके ऊपर का पीर बहुत अच्छा है। बहुत सारी बातें तो बहुत लंबी हो जाएगी, और एक शॉर्ट वाली बात आप तक पेश कर देता हूँ, है ना। अगर इजाजत हो मोहम्मद हन्नान हसमती साहब। हाँ जी दुरुशी पढ़े तो सुना दे। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर साहब बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे, मगर बेचारे बोलते बोलते दर्द भी आ जाता था उनको। सेक्रेटरी साहब भी बोले, उनके भी जबान में दर्द था। हाजी अखलाक साहब बोले, वो भी दर्द पेश कर रहे थे। आशिक साहब बोले, वो भी दर्द पेश कर रहे थे। मैं कहता हूँ साहब सारे आपके हैं, आप दर्द पेश नहीं कीजिए, आपके दर्द का इलाज मदीने में है। आप दिल को छोटा नहीं कीजिए,
ये आपने बनाया, अल्लाह उसके रसूल का घर बनाया है, तो अल्लाह ही उसके दिल में मोहब्बत डालेगा। आप जो जिस तरीके से मुस्तहकम तरीके से मजबूती से काम करना करते रहिए, आपको सपोर्ट आप मिलता रहेगा, खुद ब खुद मिलता रहेगा। बस हाँ ये है कि कुछ जहन में ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, चापलूस किस्म के हैं, है ना, जिसको चाय भी आप लोग बोलते हैं, चम्मा भी बोलते हैं, क्या करते हैं लोग, वैसे लोगों से सतर्क रहें। क्यों? इसलिए कि वो शख्स लोग कोशिश करता है फंसाने का, आपस में मतभेद करने का, इसलिए वो चीज आप न करें। आप एकदम एक झूठ के साथ इस काम को अंजाम दें। अब वो बात मैं जो पेश करना चाहता हूँ वो सुने, बड़ी अच्छी बात, बड़ी कीमती बात। प्रधान साहब हैं जी, बड़ी कीमती बात है, और शायद ये बात सुने ना तो आपको भी मजा आएगा, और उम्मीद है कि इस बात पर हम सबको अमल पैदा होना चाहिए, और मोमिन को। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिस्र जाने की बात हुई, दावत मिला, दावत। और जैसे ही दावत मिली ना तो कहा कि चलने की तैयारी करो। अब था एक ही ऊँट, अब वो अपने गुलाम को बैठा दे के अपने बैठे, तो गुलाम ने कहा कि हुजूर घबराइए नहीं, ये डोरी हम पकड़ेंगे, आप बैठिएगा। ऐसा थोड़े ना हुआ। फिर कहा कि फैसला करते हैं, इतनी मील आप बैठिएगा, इतनी दूर आप बैठिएगा, इतनी दूर हम बैठेंगे। क्या हुजूर है, आका आप हैं, गुलाम हम, गुलाम ऊपर बैठेगा, ये अच्छी बात है। कहा कि सुनो, इस्लाम का तरीका ये नहीं है, मैंने जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ा वो ये नहीं पढ़ा, मैंने जो पढ़ा वो सुनो, तुमको बैठना होगा। बात तय हो गई, फाइनल हो गया, डिसीजन हो गया कि इतनी दूर आप बैठिए, इतनी दूर आप बैठिए, अंदाजा लगा दिया गया। पहली मरतबा बैठे उमर फारूक, लगाम पकड़ा, जो डोर होता है वो पकड़े, गुलाम चले। फिर जंगल में बारी आ गई गुलाम की, फिर बारी आ गई जो है उमर फारूक की, फिर बारी आ गई गुलाम की। अब ठीक मिस्र का बाजार आने लगा ना, बारी आ गई फिर गुलाम की। आज ऐसे ही गुलाम की बारी आई, उधर खबर पहुंच गई कि हजरत उमर फारूक आ गए। हाँ जी, क्या कहा? हजरत उमर फारूक आ गए। इतना जुमला सुना ना, पूरा मिस्र उठ के आ गया, आगे आ रहे हैं, आपका इस्तकबाल करो, मुसलमानों के अमीर आ रहे हैं, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, सबसे बढ़ के ताकतवर वाले आ रहे हैं, जिनकी मिल्कियत सबसे ज्यादा है। आज एक छोटा सा मुल्क को कोई हुकूमत करना था, कितना कमलब करता, आप देखिए अब कितने लाख मुरब्बा मील पे उन्होंने हुकूमत किया है। उमर फारूक ने कहा कि गुलामों का उतरिए ना नीचे, उमर फारूक उतरने लगे तो गुलाम ने कहा कि हुजूर कहा कि उतरना है, अब आना किया, मिस्र आ गया, अब न उतरिए। कहा है, कहा कि जो है ना लोग क्या कहेगा कि गुलाम बैठा हुआ है, आका चल रहे हैं। जरा गौर से सुने, अल्लाह कहते सुनो, मुझे मैदान महशर में अल्लाह के रसूल को चेहरा दिखाना है कि नहीं। गौर से सुनो साहब, दिल से सुनो साहब। कहा कि फिर कहा कि मैं नीचे उतरता हूँ, मैं डोर पकड़ता हूँ, आप बैठो। गुलाम बैठ गए, ये डोर पकड़ लिए। आप जैसे ही डोर पकड़े तो ठीक बाजार के करीब ही थे, कुछ दूर थे, तो कुछ लोग देख करके कहा कि यही मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हैं। होता ना मिजाज इंसान का यही है। और गुलाम का चेहरा अलग था थोड़ा सा दिखने में, का यही है। अल्लाह अकबर, उसी में एक मोमिन खड़ा है, सुभान, ईमान वाला खड़ा है। उधर का है देखता है ऊपर का, फिर किधर देखे, कहा देखो जिनके हाथ में डोर है वो अमीरुल मोमिनीन और फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। चाहे सही करीब पहुंचे ना तो सब लोग कहा कि हुजूर जरा समझाना दीजिए, लोग ये बैठे कैसे आप, ये आप उतरे हुए हैं, ये फिर आप जरा माजरा समझा दीजिए। वो मोमिन जैसे ही कहा ना तो कहा कि हम लोग तय कर लिए थे मदीने शरीफ में नबी पाक की बारगाह से चले थे, ये बात तय हो गई थी जिसकी बारी होगी वही बैठेगा, इसलिए बारी इनकी थी इसलिए बैठा। तो कहा कि आप तो आका थे, कहा मेरे नबी का फरमान ये नहीं है। कहा फिर, कहा मेरे नबी का फरमान ये है कि जिसका हक है उसी दो। इतना कहना था कुफ्फार और मुशरिकीन ने बिल्कुल जोर आवाज में कहा, कसम खुदा की जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारा नबी कितना अच्छा है।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहले सुने मेरी बात को, है ना। तो कहा कि हुजूर ऐसा है ना कि दावत में जहाँ पे जाना है उससे पहले कलमा पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इस्लाम कैसे पहला साहब देखो आराम ऐसी नहीं, आप अपने अंदर वो चीज पैदा करो ना, आज भी लोग देख करके आपको सल्यूट करेंगे। बदलिए ना साहब मिजाज को। आज नमाज जैसे पढ़ने के लिए आए हैं, आज सालों साल अगर इसी तरीके से लोग नमाज पढ़ पाओ, सुभान अल्लाह, कोई आसान को नहीं रखेगा, फिर कोई आसान में उंगली नहीं खाएगा, कोई फिर नमाज में उंगली नहीं खाएगा, फिर आपका कोई उंगली नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि सबका दिल झुका खुदा की बारगाह में होगा। इतनी बात मैंने कही है, अल्लाह सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, जो अभी कुछ लोग ये बार बार कह रहे हैं साहब एक दो शेर पढ़ दीजिए, मैं मजबूरी कह रहा हूँ कि वक्त नहीं लेना चाहिए। हाँ, सलाम पढ़वा देते हैं। बस इतनी सी बात यह है कि एक शेर सुन लीजिए ताकि बेचारा मायूस न रहे, क्योंकि हो सकता है इससे मुलाकात दोबारा बेचारी की हो या ना हो, है ना। रुशि पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला अपने दिल की बात किसी से नहीं सुनाइए, दिल मदीने की तरफ लगाइए और सुनाइए। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, अरे क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। और आखिरी शेर सुने, मेरा मरना मेरा जीना बस उसी चौखट पे है, मेरा मरना मेरा जीना बस उसी चौखट पे है, मेरा मरना मेरा जीना बस उसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाए, हम कहाँ सरकार जाए आपके होते हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। आइए आका की बारगाह में खड़े होकर के मोहब्बत के साथ सलाम।